Good morning, dear students. In previous video, we have discussed about combination reaction, decomposition reaction and displacement reaction. Today, we will study about double displacement reaction, oxidation reaction, reduction reaction, redox reaction and rancidity. Okay, so let's start. Firstly, we will talk about double displacement reaction. What is double displacement reaction? In displacement reaction, we have seen more reactive metal displace less reactive metal. Okay, so see, in double displacement reaction, the reaction in which two compounds reacts by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. Means ऐसी रिएक्शन जिसमें टू कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और आयंस का एक्सचेंज करते हैं आपस में, और जब आयन का एक्सचेंज हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें टू न्यू कंपाउंड्स बनेंगे. ठीक है, सी हियर इन दिस एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन silver nitrate reacts with sodium chloride, both are in aqueous form. Okay, when silver nitrate reacts with sodium chloride, here is two compound. First compound is silver nitrate and second compound is sodium chloride. Okay, when they react with each other, they form silver chloride and sodium nitrate. Okay, sodium nitrate is in aqueous form and silver chloride is in solid form, which is PPT. PPT means precipitate. Okay, precipitate. In those reaction in which precipitate is formed are called precipitation reaction. So you can say this reaction precipitation reaction because PPT is forming. Okay, so see here is silver nitrate and sodium chloride. Okay, and see in the product, here is silver chloride and sodium nitrate. They exchange their ions. Okay, सिल्वर नाइट्रेट, अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, सिल्वर क्लोराइड, मीन्स क्लोराइड आयन यहाँ ऐड हो गया है. ओके, और देखोगे आप यहाँ पे नाइट्रेट आयन किसके साथ ऐड हो गया है, सोडियम के साथ. तो दोनों ने क्या किए, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे टू कंपाउंड्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और टू न्यू कंपाउंड फॉर्म करेंगे. Then see second example, sodium sulfate reacts with barium chloride. Both are in aqueous form. Okay, and they form barium sulfate and sodium chloride. Okay, see here, barium sulfate and sodium chloride. Barium sulfate is in solid form and sodium chloride is in aqueous form. So solid form means it form PPT. Okay, PPT means precipitate. Okay, see in this reaction here, sodium added with chloride. Okay, and sulfate added with barium, means both are exchanging their ions. दोनों अपने ions को exchange कर रहे हैं. सोडियम के साथ क्या ऐड हो गया, क्लोरीन, और बेरियम के साथ क्या ऐड हो गया, सल्फेट आयन. ओके, so two new compounds form हो गए, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड. So this reaction is called double displacement reaction. Means double displacement हो रहा है, single displacement नहीं, two times displacement हो रहा है. Okay, then oxidation reaction. Oxidation reaction, see, a reaction in which addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance takes place is called oxidation reactions. Means those reaction in which addition of oxygen, substance में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा. उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Say in this example, when copper, this is copper. Okay, when copper reacts with oxygen, it form copper oxide. This reaction is balanced. Okay, here is two copper and here is also two copper, here is two oxygen and here is also two oxygen. So this reaction is balanced. In this example, you can see copper is getting oxygen. Copper is gaining oxygen. मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन
ऐड हो रहा है कॉपर के साथ, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सी अनदर एग्जांपल, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ ऐड हो रहा है, वो क्या फॉर्म कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, next reaction is reduction reaction. A reaction in which a substance gains hydrogen or losses oxygen is called reduction reaction. ओके, मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होगा और नहीं तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन का लॉस होगा। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। सी फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस, इट फॉर्म कॉपर विच इज इन सॉलिड फॉर्म एंड वाटर विच इज इन गैस फॉर्म, दिस इज स्टीम। ओके, सो कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और हमने पढ़ा है कि लॉसेस ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन लॉस होगा, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस हो रहा है कॉपर ऑक्साइड से, इसलिए कौन सी रिएक्शन होगी? ये कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शन। और सेकेंड एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन, इट फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कोबाल्ट। इन कोबाल्ट ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन क्या होता है? स्मॉल लेटर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कैपिटल लेटर होता है। ओके, तो सो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे देखोगे आप, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जिंक बस फॉर्म हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये रिडक्शन रिएक्शन। ओके, redox reaction. In this reaction, oxidation and reduction, both reaction take in place. Okay, see first example, when copper oxide reacts with hydrogen, it form copper and water molecules. इसमें देखो आप, कॉपर ऑक्साइड है, मीन्स हमने क्या पढ़ा है रिडक्शन में कि ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। मीन्स ऑक्सीजन या तो रिमूव होगा, नहीं तो फिर हाइड्रोजन ऐड होगा। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एटम। ओके, सी हियर हाइड्रोजन, ओके, एंड इट इज गेनिंग ऑक्सीजन एटम, दैट्स वाई क्या हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। देन यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड से क्या रिमूव हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है? वो कॉपर में चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है? हमने रिडक्शन पढ़ा है कि ऑक्सीजन रिमूव होगा और नहीं तो फिर क्या होगा? हाइड्रोजन का एडिशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड किसमें रिड्यूस हो रहा है? कॉपर में। सो रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू कॉपर एंड ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनटू इसमें वाटर मॉलिक्यूल। देन सी सेकेंड रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन, इट फॉर्म जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, मीन्स zinc oxide reduction. Why? Because zinc oxide losing oxygen atom and it change into zinc, and carbon gets oxidized because it is gaining oxygen molecule, oxygen atom, and it forms carbon monoxide. Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड लॉस कर रहा है ऑक्सीजन को, ये किस में चेंज हो जा रहा है? जिंक में। और कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन करके किस में चेंज हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। इसलिए जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट कोरोजन। सी द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो हीटिंग अप ऑफ द सरफेसेस ऑफ मेटल्स व्हेन केप्ट इट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड कोरोजन। मीन्स क्या होता है? वो केमिकल प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? मेटल को बहुत लॉन्ग टाइम तक यदि वो ओपन एरिया में रहता है तो क्या करता है? इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, लाइक ऑक्सीजन गैस, केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है। तो क्या करेगा? वो जो मेटल है उससे ये सारी चीज़ों से रिएक्ट कर लेगा, जिसके कारण क्या हो जाता है? उसका कोरोजन हो जाता है। सी दिस रिएक्शन, व्हेन सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इट फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिल्वर सल्फाइड विच इज इन ब्लैक कलर। ओके, मीन्स ये क्या होता है? आपने बहुत सारी सिल्वर की ज्वेलरी देखी होगी, जब उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं? कंटिन्यूसली पहनते रहते हैं, तो वो भी क्या रहता है? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगा, मीन्स वो इम्प्योरिटी के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, और बहुत सारी गैसेस के कांटेक्ट में आएगा, स्पेशली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ जो क्या करता है? रिएक्ट करता है, तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा वो? और उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर हो जाएगा। मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ पे सिल्वर का कोरोजन हो रहा है। ओके, देन
Responsible factors for corrosion. How many factors are responsible for the corrosion of metals? Oxygen gas, water molecules means humidity, salt and impurity. If these factors are absent, corrosion will be not. मीन्स यदि ये फैक्टर एब्सेंट होंगे तो corrosion प्रोसेस नहीं होगी. corrosion प्रोसेस के लिए फैक्टर्स होना ज़रूरी है. और यदि और क्या ज़रूरी होता है? एसिड्स रहेगा, सॉल्ट रहेगा, इम्प्योरिटी रहेगी और बहुत सारी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं corrosion के लिए. देन सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. Copper means तांबा. Okay, when copper reacts with oxygen gas, firstly it forms copper oxide, and then copper oxide reacts with carbon dioxide gas, it forms copper carbonate. Okay, which is in greenish color. आपने देखा होगा जो तांबे वगैरह के बर्तन रहते हैं, तांबे के लोटे रहते हैं जिसे जल चढ़ाया जाता है, तो क्या रहता है? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कंटिन्यू यदि वो लोटा रहेगा, मीन्स क्या रहेगा? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मीन्स उसके कांटेक्ट में तो रहेगा ही. ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड में. और जब ये कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ. ये किसको क्या फॉर्म करेगी? कॉपर कार्बोनेट. तो क्या होता है? इसका ग्रीनिश कलर की लेयर चढ़ जाती है. कॉपर कार्बोनेट जब फॉर्म होता है तो वो क्या होता है? ग्रीन कलर का एक ग्रीन कलर फॉर्म करता है. और ये ग्रीन कलर ही क्या होता है? एक लेयर फॉर्म कर लेगा जिससे जो कि मेटल के ऊपर रहता है. मीन्स मेटल का कंटिन्यूसली क्या रहता है? फिर वो कोरोजन होता रहता है. ओके. देन रेंसिडिटी. रेंसिडिटी मीन्स स्पॉइलेज ऑफ फूड. मीन्स जब कोई फूड स्पॉइल हो जाता है, उसमें स्पॉइल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी. अब स्पॉइल क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? ऑयली फूड जो रहते हैं जिसमें ऑयल प्रेजेंट है. ठीक है, तब वो क्या हो जाए? जब ये फूड का स्पॉइलेज हो जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? वो उसका जो कलर है, जो उसका टेक्सचर है, टेस्ट है, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ओके. एंड व्हेन फूड स्पॉइल इट इज not desirable for consumption. means undesirable for consumption. हम उस फूड को फिर नहीं खा सकते. ओके. see here, when oxygen react with the structure of the oil in rancidity, what happens? see here, क्या करता है? जब ऑक्सीजन क्या करता है? जो फूड में ऑयल प्रेजेंट रहता है उस ऑयल के साथ क्या करेगा? वो रिएक्ट करता है उसके स्ट्रक्चर को, फिर क्या करता है? वो डैमेज कर देता है. डैमेज नेचुरल स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा. और उसके बाद वो क्या करेगा? जो फूड मटेरियल है उसको क्या कर देगा? उसके ऑर्डर में भी चेंज ला देगा और उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी. इस प्रोसेस अब क्या होता है? जो फूड प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं फूड पैकेजिंग के टाइम में. See here, nitrogen gas filled in chips packets to prevent chips from getting oxidized. मीन्स क्या होता है? नाइट्रोजन गैस को, जो चिप्स के पैकेट आपने देखा होगा ना, फूले फूले पैकेट्स रहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि जो उसके अंदर चिप्स है और जो अदर मटेरियल्स हैं जो पैक रहते हैं उनका कोरोजन ना मीन्स वो स्पॉइल ना होने पाए.